ایک کھیل کے میدانوں کی صورت میں، دوسرا جو پیپلز اسکوائر کا کانسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، اور پھر اس قسم کی جو پارکس ہے، جو سفاری پارکس ہے، اس قسم کی صورت میں ہم وہ اوپن سپیسز دے، وہ پبلک سپیسز دے جو یہاں کے رہنے والے کو وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہر سٹی کو اگر آپ نے اس کو ایک لیویبل سٹی بنانا ہے تو ایک بیسک کمپوننٹ پبلک سپیسز ہوتے ہیں جس میں عام لوگ آ سکتے ہیں، عوام آ سکتے ہیں، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ارد گرد پھر ایک معاشی ایکٹیویٹی بھی پیدا ہوتے ہیں، دکان چلانے والے ان کو بھی ایک سہولت مل جاتا ہے۔ تو اوور آل میں اس پروجیکٹ سے بھی مطمئن ہوں، اور جو میئر صاحب کا آگے جا کے جو پلانز ہے اس شہر کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جیسے اس شہر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز میں بھی جتوایا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی فیبروری 8 کو اس شہر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور جب صوبائی حکومت اور کے ایم سی مل کے کام کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ اس شہر کے عوام کو ہوگا۔ آپ کا شکریہ۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے فائدے کی بات کی، سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ جو ہے مزدور کرنے والا مزدوری کرے، حلوہ کھاتا ہے مولانا۔ تو آپ نے یہاں سے لانگ مارچ بھی کیا، آپ نے عدم اعتماد بھی لائے، 1.25 سال نون لیگ کو برداشت بھی کیا، مگر جب بھی انتخابات آتے ہیں تو پنجاب میں ایک کنگ پارٹی آپ کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کا راستہ روکا جائے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ یہی تو نہیں ہے؟ آپ کا سوال کا تو بہت شکریہ، ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہو، ہم نے بہت محنت کیا ان کو وزیر اعظم بنانے میں، وقت کا ضرورت تھا، ملک کے مفاد اور قومی مفاد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ وقت کی ضرورت تھا۔ اور وقت کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک تو ملک بھر میں جو معاشی بحران، خارجہ سطح پہ بحران اور سیاسی جمہوری بحران تھا، اس میں ہم بہتری لانا چاہ رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ ہمارے ایسے کچھ ایشوز تھے جو ہم ریزالو کروانا چاہ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہی ہے۔ ہم میاں صاحب کا جو 2/3 اکثریت دلوایا گیا 2013 کے بعد، تب بھی ہم اپوزیشن میں تھے۔ خان صاحب کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے، ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے، وسائل کے لحاظ سے ہمیں تنگ کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارا NICVD اور NICH کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو ہم نے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے اس چیز کا ضرور فائدہ لیا کہ چاہے وہ ہمارا NICVD کا ہاسپٹلز ہو، وہ واپس ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، چاہے وہ ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کی بات ہو، اس سلسلے میں اس کا فائدہ ہوا کہ ہم وفاق کے حصے تھے۔ ویسے اس سے پہلے بھی 2020 میں بھی سیلاب آئے تھے، اس وقت تو وفاق کی طرف سے ہمیں بالکل ہی کچھ نہیں ملا۔ دوسرا جو سیلاب آئے تھے، لوگ اس بات پہ تبصرہ تو کر سکتے تھے کہ کس حد تک اور کیا مزید کرنا چاہیے تھا، مگر کچھ نہ کچھ اس کا ضرور فائدہ ہوا کہ ہم نہ صرف وفاق میں تھے، مگر میں اس وقت وزیر خارجہ تھا، تو اپنا عہدہ کو میں صحیح طریقے سے استعمال کر کے پورے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ایکٹیو ہو سکتا تھا۔ تو جہاں تک نیشنل لیول کی بات ہے، وہاں وہ ایشوز میں نے آپ کو بتائیں، جو لوکل ایشوز ہم نے ایڈریس کرنا چاہا وہ بھی آپ نے بتائیں۔ جہاں تک کنگز پارٹی کی بات ہے، وہ نہ صرف پنجاب میں، ویسے ملک بھر میں ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جو اب اگلے سال الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو ہم نے 2008 میں کنگ پارٹی کا کیا تھا۔ ایک طرف تو MQM اور نون لیگ کی صورت میں یہاں کراچی میں آپ کے لیے مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف JUI جو آپ کے اتحادی رہی ہے ماضی میں، وہ لاڑکانہ میں اور کراچی سے باہر آپ کا مقابلہ کرنے آ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ آ کے مقابلہ کرے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا جو اتحاد
बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फैज़ुल रहमान की बात है, मौलाना फैज़ुल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, और हम इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे, और इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। चेयरमैन साहब ये बताइएगा, आया ये जो आपकी मुस्लिम लीग नून की JUI के दरमियान जो और आपके मतलब इलेक्शन के हवाले से बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, अगर आपके खिलाफ राशिद महमूद सोमरो ना खड़ा हो, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और आपका कैंडिडेट ना हो, और इसी तरह फजल रहमान के सामने फैसल कुड्डी साहब ना हो, तो क्या तस्वीर नहीं हो सकता, क्या एक इत्तेहाद की तरह PDM की तरह आप चल सकते हैं, आगे नहीं चल सकते? वैसे तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, सीट टू सीट एडजस्टमेंट और अलायंस की बात है। इस वक्त आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का जो ज़ेन है वो तो आपके सामने है। खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर पे लड़े, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, मुकाबला करे, हम जीत सकते हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, इलेक्शंस में अभी कुछ रोज बाकी है, 1.5 महीना बाकी है, तो आपने जब अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हटाया था, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो आज के बाद गैर सियासी हो जाएंगे। आप समझते हैं आने वाले इलेक्शंस में वो गैर सियासी हैं? मेरा ख्याल में ये तो एक सफ़र है जो हम तो 3 नस्लों से ये जदोजहद कर रहे हैं, और आगे इंशाअल्लाह ताला हमारा मंजिल यही है कि सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आखिर हम इस ये जो सियासी जदोजहद है इसमें भी हम कामयाब होंगे। चेयरमैन साहब, ये मेरा सवाल ये है कि आपने किंग्स पार्टी का जिक्र किया है, तो क्या ये इस्तेहकाम पार्टी पंजाब में या खटक साहब की पार्टी KPK में पीपल्स पार्टी के लिए किंग्स पार्टी साबित होने की कोशिश तो नहीं होगी? देखो, इस किस्म की जमाते को बनाने का मेरा ख्याल में एक गलत तासुर जाता है। एक तो किंग्स पार्टी का तासुर तो अपनी जगह, जो इससे पहले न्यूट्रलिटी का सवाल मुझसे पूछा गया, उसके बारे में जब इस किस्म के पार्टीज़ को पैदा किया जाता है तो गलत एक मैसेज जाता है, गलत एक तासुर जाता है अवाम में, सियासी हलकों में, पूरी दुनिया में। मगर साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अवाम में जो सियासी शऊर है वो इस हद तक अब भर गया है कि हर इलेक्शन में हमने ये देखा है कि जो बागी होते हैं अपने जमातों से, उनको इलेक्शन में इसका कीमत अदा करना पड़ता है। और अब जो लोग अपने जमातों से बेवफाई किए हैं, अब जब वो इलेक्शंस में जाएंगे उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अवाम जब वो अपने नुमाइंदे को मुंतखब कर रहे हैं ना, तो उस वक्त वो चाहते हैं कि वो वफादार हो, वो गैरतमंद हो, वो अपने जमातों के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो। तभी उनको अंदाज़ा होता है कि अगर वो अपने जमात के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं तो फिर वो अपने अवाम के साथ भी मुश्किल वक्त में खड़े होंगे, चाहे वो MQM हो या वो PTI हो। अगर मुश्किल वक्त में अपनी जमात के साथ खड़े नहीं थे तो यही वजह है कि इलेक्शंस में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कौमी मफाद में हुकूमत बनाने का जिक्र किया कि कौमी मफाद में हुकूमत बनाई गई थी। अख्तर मेंगल साहब इस कौमी मफाद को कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत बनवाई थी। क्या वाकईतन ये बनवाई थी, और क्यों कौमी मफाद में इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं? देखो, अब मैं इस चीज़ पे मैंने ये मेंगल साहब का कमेंट नहीं देखा। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा इतना ही कहूँगा कि जो उस वक्त जनरल बाजवा साहब खुद और एक पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है, वो उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। और जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की बात है, हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस ले और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में
हमारे पास नहीं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स किससे? पार्टी को ये बताइएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई के दौर में जाली अकाउंट केस का सामना करना पड़ा। पीटीआई का दौर से पहले पहले जो भी था, लेकिन बनाया गया केसेस जी। इसमें तमाम तर चीजें यकीनन सियासी लोगों का हाथ नहीं होगा, कुछ एस्टेब्लिशमेंट का भी होगा, लेकिन आप लोगों की जानिब से जिस तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनरल बाजवा, जनरल फेस पर इल्जाम आयद किए गए, आपकी तरफ से नहीं है कि आप उनकी तरफ से मुतमईन थे? नहीं, इट्स नॉट अबाउट मुतमिन। हम इस किस्म की सियासत नहीं करते, हम अवामी सियासत करते हैं। हम नहीं समझते कि ये मुनासिब बात है कि जब मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं किसी इदारे की तरफ इशारा करूँ, नाम लेके और अपना पॉपुलैरिटी इस बात पे भराने की कोशिश करूँ। चाहे हम अपोजिशन में थे या हम गवर्नमेंट में, हम एक सियासी लिहाज से चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आप अपना स्पेस आहिस्ता आहिस्ता गेन कर सकते हैं सियासी इदारों के लिए, सिविलियन इदारों के लिए, मगर जिस तरीके से ये एक रवायत डाला गया चंद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों से कि वो अपना पसंदीदा ऑफिसर के बारे में जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, मेरा ख्याल में ये एक बुरी रवायत शुरू किया गया पाकिस्तान की सियासत में, जो बढ़ता रहा और अब रुकना चाहिए। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि 8 को इलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये तो हम नहीं कह सकते कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं। इंशाल्लाह 8 को हम इलेक्शन करवाएंगे। चेयरमैन साहब, आप जैसे जमहूरियत में यकीन रखते हैं, क्या पीटीआई को मौका दिया जाएगा, उनको लड़ने के लिए टफ टाइम देंगे आप? जमहूरियत तो का नाम ही यही है कि सबके पास ये हक है कि अवाम के सामने आए और अवाम से ये रिक्वेस्ट करे कि उन पे एतमाद करे, उनको वोट दे। जहाँ तक पीटीआई की बात है, वो तो कल तक जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, ना आइन में यकीन रखते थे, तो अब उनको ये ख्याल आया है कि आइन भी कोई चीज़ है और जमहूरियत भी कोई चीज़ है। मेरा ख्याल में ये पीटीआई की सियासी सफ़र में उनके लिए एक टीचेबल मोमेंट है और बहुत कुछ सीखने में उनको अब मिलेगा। चेयरमैन साहब, ये बनवा दीजिए कि आप जब वज़ीर ख़ारजा थे तो आपने अफगानिस्तान का भी दौरा नहीं किया, और अब जो निगरानों ने जो हार्ड पॉलिसी अपनाई है, तो क्या वो आपके ही कुछ वो मतलब उसको अपनाया है, या फिर आप समझते हैं कि ये जो ये पॉलिसी बड़ी दुरुस्त है? दूसरा ये सर, पीडीएम जब थी तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट यही थी जो आज है, उसमें और इस वक्त में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? जहाँ तक अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारा पॉलिसी है, जब पीडीएम हुकूमत थी, हमारे एतराज़ात थे, हमारा शिकायतें थे, लेकिन हम इंगेज रखते थे। अफ़गानिस्तान तो मेरा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रबानी खर साहिबा, वो ख़ुद पहुंची थी यहाँ पाकिस्तान में। हमने इस्लामाबाद में ना सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक डायलॉग रखा, मगर एक ट्राईपार्टाइट डायलॉग भी रखा, जहाँ हम चीन का वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान का वज़ीर ख़ारजा भी हम साथ थे, ताकि हम इस किस्म के मसाइल को साथ मिल बैठ के इस पर तबसरा भी कर सकते थे, एक दूसरे के सामने अपने शिकायतें रख सकते थे। मेरा ख्याल में मज़ीद इंगेजमेंट का तो ज़रूरत है। जहाँ तक आज की पॉलिसी है, मुझे उसमें वो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रहा। हमें, मेरा ख्याल में अफ़गानिस्तान के जब हम बात करते हैं तो सख्ती हमें तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, सख्ती हमें दहशतगर्दों के साथ करना चाहिए। मैं जो ये अब जो हमले कर रहे हैं हमारे इदारे पे, हमारे पुलिस इंस्टीट्यूशंस पे, उनके पीछे जाना चाहिए, और अवाम में और दहशतगर्दों के दरमियान एक फ़ासला होना चाहिए, एक हमें दरार पैदा करना चाहिए। और अगर हर जगह सख्ती होगा तो शायद उस टारगेट पे आप मुश्किल से आप उस टारगेट पे अमल दरामद कर सकेंगे। ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, नून लीग ने सिंध में एक ब्यूरोक्रेट को सिंध का सदर बनाया, जिसने माजी में पीपल्स पार्टी पर, आपके वालिद साहब पर मुकदमा दर्ज किए हैं। तो आप समझते हैं जो मुकदमा दर्ज उस वक्त किए गए, वो जिन्हें आज ओहदा दिया गया, ये सारा क्या चक्कर? मेरा ख्याल में इससे ये तो पैगाम जा रहा है इस फैसला से कि तब भी वो साथ थे और आज भी वो साथ थे,
तो शायद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पे सोचना चाहिए कि जो हम कहते थे कि इमरान खान साहब ने सदर जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को जेल भेजा, तो ज़रूर खान साहब के दौर में जेल भेजा गया, लेकिन केस बनाने वाला तो आज नून लीग का सदर है। अच्छा ये बता दें कि लाडले पैदा करने का जो अमल था वो अब खत्म हो गया के हवाले से जो इस वक्त पॉलिसी जारी है, बेदखल किया जा रहा है अफगानियों समेत जो गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं उनको वापस जो बेदखल किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी का क्या? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून का अमल दरामद का मुखालफत नहीं कर रही, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स पे बड़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखने का सबक सिखाया है, और हम समझते हैं कि अगर किसी को वापस जाना है अफ़गानिस्तान तो उसको इज़्ज़त के साथ हमें भेजना चाहिए और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए हमारा एक संगीन इशू है, एक सीरियस इशू है जहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सवाल है, जहाँ तक इन दहशतगर्दों की ग्रुप्स का सवाल है, और मैं चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान के अवाम हमारे साथ हो, हमारे साथ मिल के इन किस्म के ग्रुप्स का मुकाबला करें। अच्छा ये बता दें चेयरमैन साहब कि हमेशा ये रिवायत रही है कि किंग्स जमातें बनाते रहे हैं और लाडले पैदा करते रहे हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट। क्या जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, अब पहले भी एक एलामिया जारी हो गया था कि अब जो है ना फौज का सियासत से बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, क्या आपकी जमात पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि आगे चलकर कोई नया तजुर्बा नहीं किया जाएगा? जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिशें अब ख़त्म हो चुकी हैं, आगे भी क्या इस किस्म के? जहाँ तक जमहूरियत डीरेल करने के सवाल है, मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम ने हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद किए हैं जो जमहूरियत को डीरेल करने वाली बात है। जहाँ तक लाडला की सियासत है और सिलेक्शन है, मेरा ख्याल में उसके लिए हमें मज़ीद जदोजहद करना पड़ेगा ताकि ये रवायत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा किया जाए, पाकिस्तान के अवाम पे ये एतमाद किया जाए कि वो ख़ुद फैसला करे कि किसको वो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहते हैं। जवाब दे देगा चेयरमैन पीटीआई को आप कहाँ देख रहे हैं इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद कहाँ देख रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई को अब देखते हैं कि इलेक्शन में क्या होता है। चेयरमैन साहब इस वक्त जो है लाडला कौन है? थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।